Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, as you know we are already doing practice question 9 and it is quite lengthy. Few parts we have done yesterday. Now we are going to cover the next of the questions which I have given you for the homework. So here you can check the solutions of that questions. Here is practice question 9.11 in front of you. It has two diagrams. So first of all we'll carry on with this. Find the measure of angle 1 and angle 10. Here you have to find out the measure of two angles. Angle 1 to angle 10. Sorry. All the angles you have to find out. 1, 2, 3, 4, 5 and angle 6. But rest of the angles are given to you in the next figure. So first of all we'll discuss this. As we know angle 1 plus 56 degrees is equal to 180 degree. This is the linear pair. You can check. So from this angle 1 is equal to 124 degree. Secondly, I'll change the color. You can see here angle 3 is equal to 82 degrees. Why? Because these are two parallel lines and this is a transversal. Therefore, angle 3 is equal to 82 degrees, that are corresponding angles. It is also done now. Then third is angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degrees. Angle 2 is here and angle 3 is here. 2 is this and 3 is this. So this is linear pair axiom. From this you can put the value of 3, that is 82 degrees, and then you can subtract from 180 degree. So angle 2 is 98 degrees. Okay. Continuing further, angle 4 is equals to angle 1. Why? These are two parallel lines and this is a transversal, so you can see angle 1 and angle 4, that are corresponding angles. So we already know angle 1 is 124 degrees, therefore angle 4 is also 124 degrees. Okay. Next is angle 2 is equal to angle 5. So you can see these parallel lines and this is a transversal. This is angle 5 and this is angle 2. So angle 2 is equal to angle 5 and we already know that angle 2 is 98 degree, therefore angle 5 is also 98 degrees. Again the same axiom, corresponding angles. यहाँ तक आप इसे पॉज करके सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हो। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, जब भी आप कोई भी एंगल फाइंड आउट करोगे उसके बाद आप एक लाइन ज़रूर छोड़ दिया करो, ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए कि फर्स्ट एंगल यहाँ तक निकला है, सेकंड एंगल अब स्टार्ट हो चुका है। ओके, नाउ एंगल 6 प्लस एंगल 90 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये इसका सेकंड पार्ट है, जो सेकंड फिगर है। इसमें जो 6, 7, 8, 9, 10 तक एंगल्स दिए हुए हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। राइट, क्वेश्चन में उन्होंने कलेक्टिवली लिख दिए थे कि 1 to 10 तक आप एंगल्स फाइंड आउट करोगे। नाउ 6 प्लस 90 कैसे पता लगेगा? आई विल टेल यू। These are parallel lines and this is a transversal. You can see formation of U on the left hand side इस तरफ। तो 6 plus 90 degree equals to 180 degree. Axiom is co-interior angles. Right? Next is angle 7 plus 52 degrees is equal to 90 degrees. You can see this is 90 degree angle, but it is further divided in two parts. One is angle 7 and another is angle 52 degrees. So 7 plus 52, 90. 7 is equals to 90 minus 52, that is 38 degrees. Then 8 is equal to 6. I'll show you. Angle 8 is equals to angle 6. Why? These are parallel lines and this is a transversal, so these are co-interior angle, alternate interior angles.
So angle 6 we already know is 90 degrees, therefore angle 8 is also 90 degrees, right? And the next one is angle 9. Angle 9 is equals to angle 7. How? These are two parallel lines and this is transversal, you can see. So angle 7 is equals to angle 9, that are alternate interior angles, right? Therefore angle 9 is also 38 degrees because already we have taken out angle 7, that is 38 degrees. You can pause the video and note down the solution. And here comes the last angle, angle 10. Now angle 10 is also alternate interior to 6 plus 52. You can see this is parallel line and this is transversal, and this total angle is equals to this total angle. Therefore angle 10 is equals to 6 plus 52 degrees. Now 6 is 90 degrees, we have taken out already. So adding 52 to 90, we are getting 142 degrees. Therefore angle 10 is equals to 142 degrees. बेटा आप वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को कम्प्लीटली अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। तो क्वेश्चन के एंडिंग में आपने सभी एंगल्स को एक बार ऐसे लिख भी लेना है कि आपने 1 से लेकर 10 तक सारे एंगल्स जो निकाले हैं वो कितने डिग्रीज के निकाले हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन 9.12। इन द फ्लैग ऑफ बहामास 4 एंगल्स आर मार्क्ड, स्टेट द एंगल्स दैट आर इक्वल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बहामास के फ्लैग में 4 एंगल्स बने हुए हैं। आपको यहाँ पे बेटा एंगल्स की लोकेशन भी दे रखी है 1 2 3 4। आपको ये बताना है कि ये एंगल्स कौन से हैं और कौन सा एक्सिम लगा है। तो बेटा एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, रेड कलर से दिए हुए हैं आपको फिगर में और यहाँ पे रेड कलर से नोटेड डाउन है। और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है? बिकॉज these are parallel lines and this is a transversal, therefore these two are corresponding angles, right? और next आपको दिया हुआ है these are parallel lines and this is a transversal, so these two are corresponding angles. angle 3 is equals to angle 4। तो दोनों ही पेयर जो हैं corresponding angles के हैं। Next question is given to you, if two lines intersect and one of the angles formed between them is a right angle, what can be stated about the other 3 angles, give reasons for your answer। अगर आपके पास 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं जैसे इस फिगर में कर रही हैं और एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी कितने होंगे? सबसे पहले तो आप सोच लो, इसके इक्वल ये होगा तो ये भी 90 होगा, ठीक है। और अगर आप इस एंगल और इस एंगल का टोटल करेंगे लीनियर पेयर लगा के तो ये भी 90 आ जाएगा और फर्दर इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल भी 90 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑल एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो कौन से 2 एग्जिम्स लगेंगे इसमें? एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का एग्जिम लगेगा और दूसरा लगेगा लीनियर पेयर का एग्जिम, राइट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सोल्यूशन। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप आस्क डाउट सेक्शन में जाके अपना डाउट पुट अप कर सकते हो। आई विल रिप्लाई यू देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 9.14। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। BA एंड BC आर पैरेलल टू ED एंड EF रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वाले के पैरेलल है, जो सेकंड वाला है वो सेकंड वाले के पैरेलल है, राइट। तो आपको ये बताना है कि एंगल ABC जो है DEF की इक्वल है। ABC एंगल ये है और DEF एंगल ये है। बट बेटा ये तो आप देख सकते हो कि डायग्राम में दोनों ही अलग बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन बनानी है जो कि ब्लू कलर से ऑलरेडी आपको दे रखी है। हियर इज़ द कंस्ट्रक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ यू हैव टू एक्सटेंड DE और ED सो दैट इट कट द BC एट पॉइंट O। आपने इसको एक्सटेंड कर देना इस लाइन को स्केल से ताकि ये इस पॉइंट पे कट कर सके, ओके। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू। आपने गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, उसके बाद आपने प्रूफ लिखना है। प्रूफ में क्या लिखोगे आप? सबसे पहले तो
DEF, this angle इज इक्वल टू DOC, ये वाला एंगल, ठीक है, जो 2L बन रही है ये वाले, ठीक है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिर्फ आप इतना लिख सकते हो यहाँ पे, राइट। दिस इज नंबर 1। नाउ ABC, अभी हम सेकंड एंगल देखेंगे कौन सा इक्वल है। दिस इज एंगल ABC एंड दिस इज एंगल DOC। अब ये दोनों एंगल्स भी बेटा इक्वल है बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से DOC इसके इक्वल है, DOC इसके इक्वल भी है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1, आप इसको 2 भी लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 भी लिख सकते हो। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, hence it is proved. Okay, so pause the video and note down the solution. Here is the next question, practice question 9.5. BA and BC are parallel to ED and EF respectively. यहाँ पे भी बेटा respectively वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि BA ED के पैरेलल है, राइट, और BC जो है EF के पैरेलल है। BA ED के पैरेलल है और BC जो है, BC इज, वेयर इज BC, हेयर इज BC, EF के पैरेलल है, राइट। तो आपको शो करना है कि एंगल ABC दिस प्लस एंगल DEF दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बहुत इजी है बेटा, देखो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की हुई है। अब ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हुए हैं, और इन दोनों का टोटल 180 डिग्री के इक्वल अगर हम प्रूव कर देंगे, सप्लीमेंट्री है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस और को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी जगह पे ये वाला एंगल पुट कर देंगे तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। सो हेयर इज द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ। प्रूफ में एंगल ABC, अब मैं डॉट्स से पॉइंट आउट करूँगी आपको। ये देखो रेड कलर का डॉट इन दोनों जगह पे लगा हुआ है, दैट मीन्स ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब सिमिलरली ब्लैक कलर से मैं नेक्स्ट एंगल्स को हाईलाइट कर रही हूँ। DOC, दोबारा से ये वाला एंगल, एंड DEF, ये वाला एंगल, कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, और इनका टोटल कितना है 180 डिग्रीज। तो DOC की प्लेस पे, यहाँ पे मैं DOC की प्लेस पे किसे रिप्लेस कर दिया मैंने, ABC से। क्यों, क्योंकि 1 में दोनों इक्वल थे, तो मेरे पास ऑलरेडी प्रूव हो गया है कि ABC is equal to DEF. You can pause the video and note down the solution. So these were the questions which I have given you yesterday. अगर आपने ये questions already किए हैं और ठीक हैं तो आप बेटा उनको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ फाइन। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पे कुछ मिस कर दिया है, कंस्ट्रक्शन मिस कर दी है या कोई रीज़न मिस कर दिया है, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो ये सॉल्यूशंस को फॉलो करके। ओके, तो इसके साथ ही आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 जो है कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी शैल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक एंड न्यू थ्योरम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैप्पी लर्निंग।